السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اسپینش زبان کے اندر دے کو کتنی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دے اسپینش کی ایک پریپوزیشن ہے جس کا انگلش کے اندر مطلب ہوتا ہے آف یا فرام، اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کا یا اسپینش میں اس کو یعنی دے کو استعمال کرنے کے 10 مین طریقے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دے اسپینش کے اندر کہاں کہاں یوز ہوتا ہے۔ نمبر 1، پوزیشن یعنی ملکیت۔ دے کا استعمال کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے este auto es de Ali، este auto es de Ali، this is Ali's car، یہ علی کی کار ہے۔ تو یہاں پر دے کیا ظاہر کر رہا ہے؟ ملکیت ظاہر کر رہا ہے علی کی، کہ یہ کار علی کی ہے۔ تو ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا استعمال ہوا؟ دے۔ este auto this car، اس از یعنی ہے، دے علی آف علی یعنی کہ علی کی، este auto is de Ali، this is Ali's car، یہ علی کی کار ہے۔ نمبر 2، اوریجن یعنی بنیاد۔ دے کا استعمال کسی شخص یا چیز کی بنیاد کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز یا وہ شخص کہاں سے ہے، جیسے سوئی دے پاکستان، آئی ایم فرام پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ سوئی کا مطلب آئی ایم یعنی میں ہوں، دے پاکستان فرام پاکستان یعنی پاکستان سے، تو میری بنیاد کیا ہے یعنی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے کہ پاکستان سے، تو دے کا استعمال ہوا اوریجن کو بیان کرنے کے لیے۔ دوسری مثال ہے esta deliciosa comida es de un nuevo restaurante، esta deliciosa comida es de un nuevo restaurante، this delicious food is from a new restaurant، یہ مزیدار کھانا ایک نئے ریسٹورنٹ سے ہے۔ تو یہ کھانا جو یعنی کہ مزیدار کھانا ہے نئے ریسٹورنٹ سے ہے، تو کیا ہے؟ اوریجن بیان کر رہا ہے کہ یہ کہاں سے ہے، یعنی اس کی بنیاد کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ esta deliciosa this delicious comida کا مطلب فوڈ، esta deliciosa comida this delicious food، یہ مزیدار کھانا، اس دے یعنی از فرام یعنی ہے کہاں سے؟ un nuevo restaurante، a new restaurant یعنی ایک نئے ریسٹورنٹ۔ Esta deliciosa comida es de un nuevo restaurante، this delicious food is from a new restaurant، یہ مزیدار کھانا ایک نئے ریسٹورنٹ سے ہے۔ نمبر 3، ٹائم، وقت کو بیان کرنے کے لیے بھی دے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے cinco de la mañana، cinco de la mañana، 5 o'clock in the morning، صبح 5 بجے۔ تو یہاں پر ٹائم کو یعنی وقت کو بیان کرنے کے لیے بھی دے کا استعمال ہوا ہے، یعنی صبح کے 5 بجے۔ تو دوسری مثال ہے ہمارے پاس جیگاڑے آلاس 2 سے دل میں دیو دیا، I will arrive at 12 in the afternoon، میں دوپہر کے 12 بجے پہنچ جاؤں گا۔ دل کیا ہے؟ یہ دے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جو کہ ٹائم یعنی کہ آفٹر نون یعنی دوپہر کو ظاہر کر رہا ہے۔ جیگاڑے I will arrive، میں پہنچ جاؤں گا، آلاس 2 سے دل میں دیو دیا، at 12 in the afternoon، دوپہر کے 12 بجے۔ نمبر 4 پر جہاں پر دے کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے میٹیریل، کسی بھی چیز کی بناوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ چیز کس چیز سے بنی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی دے کا استعمال ہوتا ہے۔ este es un anillo de oro، this is a gold ring، یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو انگوٹھی کس چیز کی ہے؟ سونے کی۔ کس چیز سے بنی ہے اس کی بناوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کس میٹیریل سے بنی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے دے کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو سونے کی بنی ہے یعنی سونے کو ظاہر کر رہا ہے دے۔ este es un anillo، this is a ring، یہ ایک انگوٹھی ہے، de oro of gold یعنی کہ سونے کی۔ آگے دوسری مثال jugo de naranja، jugo de naranja، orange juice، مالٹے کا جوس۔ jugo یعنی جوس، de naranja آف اورنج یعنی مالٹے کا جوس، یعنی کہ یہ جوس کس چیز سے بنا ہے، کس میٹیریل کا ہے؟ وہ ہے مالٹے کا۔ تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا استعمال ہوا؟ دے۔ jugo de naranja اورنج جوس، مالٹے کا جوس۔ نمبر 5 پر ہے جی کریکٹرسٹکس، یعنی کسی کی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے بھی دے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے estos son zapatos de buena calidad، estos son zapatos de buena calidad، these are good quality shoes،
शूज, ये अच्छे म्यार के जूते हैं। अच्छा म्यार क्या है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि क्वालिटी है, यानी कि खसूसियत है उसकी, तो उसको बयान करने के लिए दे का इस्तेमाल हुआ। यानी ये जो जूते हैं ये अच्छे म्यार के हैं, अच्छी खसूसियत के हैं। इसको ज़ाहिर करने के लिए दे का इस्तेमाल हो गया। एस्टोस son zapatos, these are द शूज, ठीक है ना जी, ये जूते हैं। दे बुएना कालिदाद ऑफ गुड क्वालिटी, यानी अच्छे म्यार के। एक और अहम बात कि आप किसी इंसान की भी खसूसियत को बयान करने के लिए दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 पर है जी कंटेंट्स, यानी मशमूलात या मवाद। मशमूलात या मवाद को ज़ाहिर करने के लिए भी दे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एल quiere un vaso de agua, एल quiere un vaso de agua, he wants a glass of water, वो एक गिलास पानी चाहता है। तो वो क्या चाहता है? वाटर, यानी आगवा, यानी पानी। तो वो क्या है? एक मवाद है। किस चीज को चाहता है? पानी को। तो उस कंटेंट यानी मवाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है दे, यानी एल quiere un vaso de agua, he wants a glass of water, उसे एक पानी का गिलास चाहिए। तो पानी क्या है? मवाद है। एल quiere he wants, वो चाहता है। un vaso एक गिलास, एक गिलास, de agua of water, पानी का। जो compre una docena de huevos, जो compre una docena de huevos, I bought a dozen of eggs, मैंने एक दर्जन अंडे खरीदे। अब यहाँ पर मवाद क्या है जी? अंडे। अंडों को ज़ाहिर करने के लिए, यानी कंटेंट्स हैं ये, यानी मशमूलात हैं, इनको ज़ाहिर करने के लिए दे इस्तेमाल हुआ है। यानी ए डजन, एक दर्जन किसका है? अंडों का। तो उनको ज़ाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? दे। जो कुम्पड़े आई बाट, मैंने खरीदे। उना दोसेना ए डजन, एक दर्जन। दे वेवोस ऑफ एग्स, अंडे, यानी अंडों का दर्जन। नंबर 7 पर है जी रिलेशनशिप। ताल्लुक को बयान करने के लिए भी दे का इस्तेमाल होता है। जैसे इस्लामाबाद इज ला कैपिटल दे पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज ला कैपिटल दे पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप है, यानी इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है किसका? पाकिस्तान का। उसका ताल्लुक बन रहा है पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान का शहर है या दारुल हुकूमत है, दोनों हालत में इसका रिलेशनशिप बन रहा है पाकिस्तान से, ताल्लुक बन रहा है। तो उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है दे। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हो गया। इस ला कैपिटल, इज द कैपिटल, दारुल हुकूमत है। दे पाकिस्तान, यानी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का। एल एस एरमानो दे मी अमीगो, एल एस एरमानो दे मी अमीगो, ही इज माई फ्रेंड्स ब्रदर, वो मेरे दोस्त का भाई है। कि वो किसका भाई है? ताल्लुक बयान कर रहा है, यानी मेरे दोस्त का भाई है। एल एस एरमानो, ही इज बिरादर, वो भाई है। दे मी अमीगो, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त का। ठीक है ना जी। आगे जी पार्ट ऑफ ए होल, यानी किसी चीज के टुकड़े या हिस्से को बयान करने के लिए भी दे का इस्तेमाल होता है। यानी किसी एक पूरी चीज के किसी एक टुकड़े को या हिस्से को बयान करने के लिए दे इस्तेमाल होता है। जैसे necesito un pedazo de papel, necesito un pedazo de papel, I need a piece of paper, मुझे कागज का एक टुकड़ा चाहिए, पूरे कागज का एक टुकड़ा चाहिए। तो एक टुकड़े को, एक हिस्से को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है दे। necesito un pedazo, I need a piece, मुझे एक टुकड़ा चाहिए, दे papel of paper, कागज का। दूसरी इसकी मिसाल है una pequeña parte del muro está rota, a small part of wall is broken, दीवार का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया है। दिल ज़ाहिर कर रहा है दीवार के हिस्से को। दिल क्या है? ये दे और एल का मजमू है। दिल और दे में क्या फ़र्क है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप यूँ समझें ये एक दे है। una pequeña parte del muro, a small part of the wall, दीवार का एक छोटा सा हिस्सा। está rota, टूट गया है, यानी is broken। आगे जी नंबर 9 पर ए सब्जेक्ट। मौजू को बयान करने के लिए भी दे का इस्तेमाल होता है। जैसे लिब्रो दे सिएंसिया, लिब्रो दे सिएंसिया, साइंस बुक, साइंस की किताब। अब मौजू क्या है? साइंस। किताब तो किताब होती है, लेकिन उसका मौजू क्या है? साइंस है, साइंस की किताब। तो
यहाँ पर भी मौजू को बयान करने के लिए दे का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी मिसाल है हिस्टोरिया दे एस्पानिया, हिस्टोरिया दे एस्पानिया, हिस्ट्री ऑफ स्पेन, स्पेन की तारीख। तो यहाँ पर मौजू क्या हो रहा है जी, तारीख है स्पेन की, स्पेन की तारीख। मौजू क्या है जी, तारीख है, तो उसको बयान करने के लिए दे का इस्तेमाल। तो नंबर 10 पर है हमारे पास ए सुपरलेटिव, यानी अगर किसी के अंदर सबसे आला तरीन कोई खसूसियत है उसको भी बयान करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए दे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे él es el mejor maestro de la escuela, él es el mejor maestro de la escuela, he is the best teacher in the school, वो स्कूल का बेहतरीन उस्ताद है। अब स्कूल में दूसरे भी तो उस्ताद हो सकते हैं, लेकिन वो सबसे अच्छा यानी कि बेहतरीन है, स्कूल में सबसे अच्छा है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, दे, यानी किसी उस्ताद की खसूसियत को बयान कर रहा है कि वो सबसे बेहतरीन है। एल एस एल मेखोर, ही इज़ द बेस्ट, वो बेहतरीन है। माएस्ट्रो उस्ताद यानी टीचर, देला एस्कुएला इन द स्कूल, स्कूल का या स्कूल में। दूसरी इसकी मिसाल है एल एस एल नीनियो मास लिंदो de nuestra familia, एल एस एल नीनियो मास लिंदो de nuestra familia, he is the cutest child in our family, वो हमारे ख़ानदान का सबसे प्यारा बच्चा है। अब हमारे ख़ानदान में दूसरे बच्चे भी तो हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चा सबसे प्यारा है। तो उसको उसकी जो खसूसियत है यानी वो प्यारा है, उसको बयान करने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए दे इस्तेमाल हो रहा है। एल एस एल नीनियो, ही इज़ द चाइल्ड, वो बच्चा है। मास लिंदो, क्यूटेस्ट यानी सबसे प्यारा। दे नुएस्ट्रा फामिलिया, इन आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान का या हमारे ख़ानदान में। तो ये था आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर हमने 10 डिफरेंट इस्तेमाल सीखे स्पेनिश की प्रीपोजिशन दे के। तो उम्मीद है कि अब आपको दे का इस्तेमाल करने का अच्छा सा तरीका मिल गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट बाकी है समझने में या कोई और भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।